Hello, very good evening, my dear students, online batch. Let me tell you one thing that in today's English language class, I am Tarun sir, your English trainer. I am going to teach you very important rules of the toughest topic included in English language, that is prepositions. Prepositions has destroyed the willpower of many students. They fail to solve phrasal verbs or phrasal prepositions questions. Okay, now before we begin, now you people can turn off your videos if you wish to. I'm not at all fond of looking at you. चलो भाई अब ध्यान देना. Look at this. ICSE and ISC board students you get preposition of half marks each. जिसको जिसको स्क्रीन दिख गई है वो ओके बोल देगा. ओके सर. ओके Okay, sir. Thank you so much. Now let me tell you one thing. There are few students who had solved this offline. No need to panic. Just consider this as a revision. और देखिएगा मैं किस तरीके से क्या सॉल्व करने जा रहा हूं इसमें. Class 10, 11 and 12 students, look at this. It is all about phrasal prepositions. अब ये phrasal prepositions बिना Google सर्च किए मुझको definition बता दो. What are phrasal prepositions, please? Yes, anyone? अब तो तुम सर्च कर रहे हो पक्का. The direct meaning of some words. Wrong. Sir, words which put meaning in the sentence. Wrong. Next. Anyone else? चलो नहीं आता, मैं बता देता हूं. सायन तुमको बोलना है आंसर? नहीं, sir. कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूं. अविरल, आई होप यू वुड बी डेफिनेटली आंसरिंग दिस. मनकीरत, Yes, sir. अरे वाह, तो बताओ. Sir, it is like a single prepositions. Some means we use the meaning like according to or something. ओके, तुमने एकदम उल्टा बता दिया. सिंगल वर्ड नहीं होता है. ये देखो, दीज आर कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशंस. प्लीज तीनों कोई एक बच्चा इसको पढ़िए जरा. पहला क्या लिखा है? कट ऑफ. दूसरा? Put in. तीसरा? Wait for. Wait for. Now, phrasal prepositions are called two-word or three-word preposition. Number one. अब मेरी डेफिनेशन सुनो, मैं क्या बताने जा रहा हूं. phrasal preposition होता क्या है? What are phrasal prepositions? Whenever we combine verb and prepositions together, that is actually called either phrasal preposition or phrasal verb. ये देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखोगे तो आपको वर्ब मिलेगा. राइट हैंड साइड पे देखोगे तो प्रेपोजिशन मिलेगा. वाह, पता नहीं किसी को समझ में भी आया कि नहीं. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो वर्ब एंड राइट, यही एक कॉन्सेप्ट होता है इसका. दैट्स इट.
either you call it as phrasal verb or phrasal preposition. मतलब verb plus preposition is known as phrasal preposition or phrasal verb. अब हम लोग आगे चलते हैं. जैसे for example, look at this beautiful exercise designed by me for you people, where you can test your knowledge that how much do you know about phrasal preposition और meaning कितना जानते हो उसके बारे में. चलिए जरा देखते हैं. सबसे पहले आता है she cut down on sugar to improve her health. The first important task is to actually identify the phrasal preposition. तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कार्तिकेय से. कार्तिकेय, क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को बस इतना बता दो दैट ये फ्रेजल प्रपोजिशन है कहाँ. क्वेश्चन नंबर 1 में कट डाउन एब्सोल्युटली करेक्ट. सो प्लीज अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा बाद में सभी लोग को, तो आप लोग उसको देख के रट सकते हैं. यू कैन मेमोराइज थिंग्स प्लीज. चलिए जरा आगे चलते हैं. शी कट डाउन ऑन शुगर. कट डाउन का मीनिंग होता है राइट डाउन, रिड्यूस्ड. कट डाउन द मीनिंग इज रिड्यूस्ड. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा वाला देखिए क्या लिखा हुआ है. मनकीरत बताएंगी इसमें फ्रेजल प्रपोजिशन है कहाँ दूसरे वाले में. सर कट ऑफ. अरे वाह, कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब होता है स्टॉप्ड. कीप राइटिंग द आंसर्स जल्दी जल्दी. तो पूरी सॉल्व कर ली. Very good. I hope you understand English. I just mentioned that it would be a kind of revision. हाँ, आगे चलते हैं. पूरी आपने सॉल्व कर ली है पक्का? यस सर. अच्छा, तो एक काम करिए, मुझको बस 3 सेकंड में इसका मीनिंग बता दो सेट आउट का. 1 कहाँ सर? 2 किस क्वेश्चन में मैं है? फिर से समझ दे रहा हूँ. सुनना, मैं क्वेश्चन क्यों बोलूं, मेरे को ऐसे बताओ, सेट आउट का मीनिंग बताओ जरा. 1 2 3. थैंक यू सो मच, मुझे जवाब मिल गया. हाँ, सर क्वेश्चन पूछते तो बता भी देता. समझे ना. ठीक है, तो इसी वजह से मैंने कहा तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए रिवीजन बनाया गया है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है पुट अवे. प्लीज पुट अवे योर टॉयज. पुट अवे का मीनिंग लिखो अरेंजिंग एंड स्टोरिंग. इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन बी है. प्लीज बहुत ढंग से फोकस रखना. आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक. चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा. सबसे पहले अमोक से पूछता हूँ, नहीं आराध्या का नाम आ रहा है पहले. आराध्या, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक. प्लीज सर्च आउट द मीनिंग. आराध्या ने नहीं बोला. अच्छा, मिस्टर काव्य, क्वेश्चन नंबर 4 पुट ऑफ का मीनिंग बताइए. हाँ, क्या बोला? सर डिलेड. डिलेड. वेरी नाइस. लेकिन पहले इन्होंने कुछ और बोला. जब अंटिल नेक्स्ट वीक, ओके नो प्रॉब्लम. और जब अंटिल नेक्स्ट वीक लिखा है, सो इसी वजह से मेरा आंसर देखिए क्या है. माय आंसर इज द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक. आंसर इज राइट डाउन डिलेड. आंसर इज डिलेड. चलो हम आगे बढ़ रहे हैं. द कार हिट अपॉन. प्रथम आंसर बताइए. Third, discovered unexpected. Absolutely correct. Answer is A. The car hit upon a hidden problem during inspection. इसका मतलब ये होता है hit upon का that something which is uninvited. ऐसी कोई चीज जिसको हमने इनवाइट ना किया और सामने आ गई हो. Something that is uninvited. Very nice. Question number 6 goes to Aviral.
क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। The thief hit out at the guard. Sir, it should be option B. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अटैक्ड। क्वेश्चन नंबर 7 गोज टू सायन। सायन आंसर बताइए। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर फ्रेजल वर्ब ढूंढो उसमें, फिर आंसर बताओ, एंड बी क्विक। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। खुशी तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। So we must set off early to reach on time. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ? So begin Understand a it. journey. बिगन ए जर्नी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए जरा, ये रहा सेट ऑफ और ये रहा सेट आउट। तो मैं जरा मीनिंग समझाने जा रहा हूं इन दोनों का। सेट ऑफ का मतलब होता है टू बिगिन विद अ जर्नी, एंड सेट आउट का मतलब होता है टू बिगिन विद सम इन्वेस्टिगेशन। सेट आउट मतलब किसी एम से बाहर जाना। चलिए जरा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गोज टू श्लोक। श्लोक प्लीज रीड आउट Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 8। She set up a new business last year. Sir, set up phrasal verb preposition और आंसर होगा इसका established. एब्सोल्युटली करेक्ट। सेटअप का मतलब होता है टू सेट अप अ बिजनेस, एस्टैब्लिश अ बिजनेस। वेरी वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 9, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। So मैं क्वेश्चन नंबर 9 मैं बोलूंगा। प्लीज लुक आफ्टर द बेबी वाइल आई एम अवे। लिखो टेक केयर ऑफ। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो रही है। प्लीज लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 10, आराध्या पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 10। Yes, I will look into the matter tomorrow. पहले तो फ्रेजल ढूंढो, फ्रेजल प्रपोजिशन ढूंढो, Look into. एंड फिर उसका मीनिंग ढूंढो। Investigate. थैंक यू सो मच। आइए नेक्स्ट, रितिशा का 11th पे आओ। रितिशा लग रहा है नहीं। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन हैं, बात नहीं करना चाह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। सायन 11th वाला पढ़ो जरा। The friendship broke down after the argument. बेटा ये द कहां से नजर आ रहा है तुमको? Sir, there है. हाँ, अब पढ़ो फिर से। Their friendship broke down after the argument. ब्रोक डाउन का Broke मीनिंग down. बताइए। राइट डाउन, ब्रोक डाउन, एंडेड और फेल्ड। लिखो आंसर, एंडेड और फेल्ड। sir, यस प्लीज, एनी अदर आंसर तो बता दो। तो सेट आउट की मीनिंग बता दीजिए प्लीज। सेट आउट की मीनिंग लिखो, टू मूव आउट विद अ पर्पस, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट यू पीपल आर राइटिंग इट डाउन। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। ब्रोक डाउन का मीनिंग लिखो, एंडेड और फेल्ड। सायंस समझ गए? जी सर. चलो जरा अब आते हैं। अब थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूं। जिसको स्क्रीन नजर आ रही है, सॉरी, जिसको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, केवल वही मेरे को बोलेगा कि सर नहीं आ रही है, बाकी लोग शांत रहेंगे। आगे चलते हैं। लिखो ब्रोकआउट। ब्रोकआउट का मतलब होता है स्टार्टेड सडनली। लिखो ब्रोकआउट स्टार्टेड सडनली। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रोव अवे। लिखो टू लीव द प्लेस इन अ कार।
अच्छा, मैंने कार ही क्यों बोला? क्या बाइक से नहीं छोड़ सकते जगह? अगर मैं ड्रोव अवे लिख सर रहा क्योंकि हूं, उसमें ड्राइव को वो पूरा वर्ड दिया गया है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम कार को ड्राइव करते हैं, बाइक को नहीं ड्राइव करते हैं। बाइक को राइड आगे करते हैं। चलते हैं। यस, बाइक को राइड करते हैं, कार को वी ड्राइव। तो ड्राइव अवे हमेशा व्हीकल के लिए यूज होगा, मतलब कार, ऑटो, टेम्पो। आगे चलते हैं। वेरी वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 14, द लाउड नॉइज ड्रोव अवे। ड्रोव अवे का मतलब होता है एक तो कार से जगह को छोड़ देना, और एक ड्रोव अवे का मतलब होता है कान का फट जाना। फ्राइटेंड। In case, yes, in case if the music is loud, in case if someone is shouting, कोई तुम्हारे सर पे चिल्ला रहा है, तब तुम ड्रोव अवे का मीनिंग लिखते हो। लिखो फ्राइटेंड एंड कॉज टू लीव। क्वेश्चन नंबर 15, एफ्लिक्टेड विद का मीनिंग लिखो जरा, इतना इंपॉर्टेंट है ये। एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है सफरिंग। सफर्ड फ्रॉम। लिखो सफर्ड फ्रॉम। वेरी नाइस। लिखो सफर्ड फ्रॉम। जानते हैं बोल रहे हैं। ओके, अब जरा क्या इनके सब लोग सामने किए एक थे बार बैठ के? 15 सामने क्वेश्चन क्लास में तक किया पहुंच गए हैं, एंड एनी डाउट्स तो हम लोग आगे बढ़े। 15 क्वेश्चंस ओवर। बी क्विक। मनकीरत, सायन, अविरल, रितिशा, कार्तिकेय, anyone can raise their doubts. I hope you are understanding activity चल क्या रही है। All of them have attended such classes before, maybe at school level, या घर पे बहुत परेशान रहे होगे कि सर प्रपोजिशन रटे कैसे। तो भाई रटने वाला तो रट लेगा, आई एम वेरी श्योर। जो मेमोराइज करने वाला होगा वो बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेगा, जैसे अभी मैं करा रहा हूं। प्लीज रेज योर डाउट्स। सर क्वेश्चन नंबर 15 में जो सेंटेंस है, द विलेज वॉज एफ्लिक्टेड विद ड्रॉट, और सर जो 16th वाला है उसमें भी वॉज अफ्लिक्टेड बाय सीरियस इलनेस है। लेकिन सर दोनों की मीनिंग क्यों अलग अलग है? इसमें भी तो सफर्ड फ्रॉम हो सकता था 16th वाले में। बेटा सफर्ड का मीनिंग ही ट्रबल्ड होता है। इन केस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, सुनना, इन केस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका मतलब आप फीवर से परेशान हैं। बोलो हाँ। हाँ जी। बस ये रहा आपका आंसर, एफ्लिक्टेड विद। और कब एफ्लिक्टेड विद लगाना, कब एफ्लिक्टेड बाय लगाना है, मैं बताता हूं। ओके सर। एफ्लिक्टेड विद का मीनिंग लिख लो जरा एक जगह। व्हेन समथिंग, लिखो व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। लिखो एफ्लिक्टेड विद व्हेन समथिंग इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। और एफ्लिक्टेड बाय लिखो व्हेन समथिंग इज ट्रबल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Afflicted by when something is troubled for a short period of time. ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग कितने नंबर पे आ गए? 17। वोर आउट का मतलब लिखो ओल्ड, डैमेज्ड, फेडेड, ये सारे लिख डालो और तुमको आंसर मिल जाएगा। कैसे? She wore out her shoes during the trek. Damaged. अब बताओ, ट्रैकिंग पे अगर कोई जाएगा तो तुमको क्या लग रहा है? जूते उसके
क्या लुलु मॉल जैसे नजर आएंगे अच्छे, या एकदम डैमेज हो जाएंगे? बताओ। Sir, it will get damaged. थैंक यू, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखो, दोनों चीजें पढ़ना। शी वोर आउट हर शूज ड्यूरिंग द ट्रैक, शी डैमेज हर शूज। और एक वोर आउट होता है, अब तुम लोग सुबह से, मुझे पता है सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, इतने मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे होगे। अब तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो, यू आर वोन आउट, यू आर वोन आउट, मतलब तुम्हारे अंदर अब एनर्जी नहीं बची। इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड। क्या मतलब होता है सायन? Exhausted. तो अंडरलाइन करो 17 का बी और 18 का बी। जिसको ये पीडीएफ नहीं मिली है, मेरे को हेलो भेज के व्हाट्सएप पे ले लेगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 19 गोज टू अमोघ। Take off your shoes before entering. टेक ऑफ Answer का is मतलब remove. होता है रिमूव। और टेक ऑफ कौन कौन सी चीजों के लिए यूज होता है मैं बताता हूं। प्लेन, क्लोथ्स, हैट, बैग, शूज। लिखते चलो नोट्स, बिना रजिस्टर के मेरी क्लास में बैठ मत जाना गलती से। टेक ऑफ, प्लेन, क्लोथ्स, हैट, बैग, शूज। देखें जरा इन्होंने क्या दिया गया है। प्लीज टेक ऑफ योर शूज दिया है, रिमूव योर शूज। द प्लेन टुक ऑफ, इसका मतलब फ्लू इनटू द एयर। वाह वाह वाह, जो बताया वही क्वेश्चन आ गए। गुड। ओके, नेक्स्ट। टुक अप, टुक अप का मीनिंग लिख लो। टू स्टार्ट, टू ज्वाइन। कौन कौन स्विमिंग करने जाता है? कोई नहीं जाता। कौन कौन स्विमिंग करने जाता है? कोई नहीं।